Department of Commerce, AMU Aligarh. As far as ma'am's qualification is concerned, she did her BCom, MCom from Aligarh Muslim University, PhD in Department of Commerce, AMU Aligarh, short-term course on social entrepreneurship from Department of for Continuing Education, University of Oxford, UK. Ma'am has more than 20 years of teaching experience of teaching UG, PG, BCom, MCom, MBA, MTA, and DBF students. And area of specialization includes direct taxation, business statistics, business and managerial economics, marketing and behavioral economics. रिसर्च इंटरेस्ट जो है मैम का वो है मार्केटिंग, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड women studies. Ma'am has supervised successfully about 14 PhD scholars and still 4 are under supervision. As far as publication is concerned, ma'am has published 4 books of her own credit and more than 35 academic papers in national and international journals of repute like Emerald, Sage, and Elsevier, etc. She has also presented more than 50 papers in various international and national conferences and seminars. Ma'am chaired more than 10 national and international conferences and seminars, and she has delivered various, I will say the number of lectures, मैं यहाँ mention नहीं कर पाया उसका number, but मैंने बहुत लंबी लिस्ट देखी थी मैम की CV में, इसलिए मैंने various numbers कह दिया. And she is regular and very active resource person of our UGC HRDC AMU Aligarh. Apart from this academic capacity of ma'am, she has also involved in various administrative activities, like she was the provost of Indira Gandhi Girls Residence Hall of Aligarh Muslim University. Presently, she is the provost of Begum Azizun Nisha, life member of Textile Association of India, and member of Internal Complaint Committee of Aligarh Muslim University, life member of World Economic Forum. And one more important thing, participants, which I would like to mention over here, that ma'am is the convener and director of one of the program that is known as SURE, S-U-R-E, Stimulating Urban Renewal Through Entrepreneurship, which is have the memorandum of understanding signed with the University of Horsens, UK. Ma'am is also nominated for the exchange program under 5th UDC Tech University with University Grant Commission, New Delhi, with Mauritius. These are the few important points which I tried to mention over here. Participants, if you really wish to know much more about ma'am, I request you to visit on the website of Department of Commerce, AMU Aligarh, and you will able to see the long CV of ma'am and her experiences. Thank you very much, ma'am, for joining us. I would like to invite to speak on the topic entrepreneurship development. Yeah, sure, Dr. Now the mic over to you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much for being introducing me so humbly to the participants. I think they get much more than, I don't know whether I deserve that much of praises or not. Thank you so much. One thing I would like to just to start with, I would like to say that, just a minute. I would like to just tell you that I'm working on one of the projects, which is on the basis of MOU between University of Houston, USA, and Aligarh Muslim University. And this is a practical-oriented program where we are helping people to become entrepreneurs. And though my maybe publication is not much on entrepreneurship, but practical work जितना भी मेरा है वो entrepreneurship पे बहुत ज़्यादा है. That is, I try to help people to, I try to mentor them to become entrepreneurs and start their own business through this program. So to continue to this, because this is, I think, the need of the hour, and I think this is the best substitute to the rate of unemployment that is existing in the country. A very sorry picture is there that the number of unemployment, especially the youth, they are unemployed and they are not getting this, though they are qualified. It's not that they don't have
the qualification they are qualified is still the jobs are not there in the market. So the best option or the best alternative that is available is, I think, entrepreneurship. That can be one. Obviously, I won't say that everybody has to go for entrepreneurship. It can be few people, whoever think that they are talented. So why not, as per the, because this government is also realizing that entrepreneurship is all the more important, and it needs to be, widespread. So अभी आपका session new education policy पे हुआ है. There are so many things that have been intervened in the new education policy. For example, they say that there should be some skill and vocational courses also, so that in addition to the theoretical knowledge, the student should get into touch with the practical aspects, and they should get practical insights also, so that they can, so that they may, once they cross the threshold of the university, they can have start their own livelihood. So this is one of the program which I'm running, is also a livelihood program, and maybe it is also a community services to the people living around Aligarh Muslim University. So this is to start with. Let me share my slides with you. That is, I'll focus on, is it visible? Yes, ma'am, it's in the process. Yes, ma'am, it is visible. Yes, ma'am. It's visible. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. So when we talk about that, how can, as on the, because I hope that all of you are teachers at different colleges or universities, and you are teaching the students who are on the verge of, starting their livelihoods in maybe coming 3 years, 4 years, or whatever, whenever they end up their education system. But that is the threshold or the last point, कि इसके बाद अब कुछ ना कुछ कमाने के लिए हमें निकलना है. Maybe as a job, maybe as an entrepreneur, whatever is available. And so therefore, how we as a teacher at the platform of the colleges can help those students, mentor them, that how can they get into entrepreneurship. So first we will understand what the actual entrepreneurship is, and how this entrepreneurship is going to help any economy. Why is it important for any economy? So here, what is the meaning of entrepreneurship? It is actually, who is an entrepreneur actually? Entrepreneur is the person who looks around and he observes that there is certain problem that is existing, because entrepreneur actually, he identifies the problem and he thinks that how can this problem be solved, and this he tries to do this by bringing out some innovative solutions. So what does he do? That he just simply bring all the resources together, all the factors of production together, maybe land, labor, capital, raw material, funding, finances, everything, whatever is required, he brings them together, he puts them into use, and then he produces finished goods and services to be sold in the market. So that is what the actual function of an entrepreneur is, and that is what an entrepreneurship is all about. That is, he collects all, the financial, the physical resources. He takes all kind of risk, because whatever problem he can see, and the solution he brings, वो जरूरी नहीं है कि वो market में click करे. उसका जो भी solution वो लेके आ रहा है, maybe in terms of goods or services, जरूरी नहीं है कि वो accept हो, but still he does it, and therefore he tries to satisfy, people by filling up that gap that was existing due to the problem. बहुत सारे आप देखिए चारों तरफ जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर ही बना रहा है. बहुत सारी सर्विसेज जो चारों तरफ है, वो भी एंटरप्रेन्योर ही बना रहे हैं, बिकॉज वॉट एवर इज डन, आइदर इट इज रन बाय अ प्राइवेट सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर. So, but आज के scenario में, how is it that why we find that entrepreneurship is becoming so important, that government is promoting it at every level? One reason, which we have already said just now, that is the unemployment level in the country, which is going, at a large level, and therefore we need more job givers instead of job seekers.
instead of job seekers, we need more job providers. And since we know that entrepreneurs are the brains in the country, and they go with the startup ideas, because can you imagine any country without entrepreneurs? Agar entrepreneurs nahi honge to kya honge? Koi production nahi hoga, koi goods nahi honge, koi satisfaction nahi hoga. And therefore we need more and more people to come into this domain, so that they help the economy to grow, they help the production segment, the service segment, etc. And therefore, after understanding this, we find that how these entrepreneurs, they contribute to an economy. Actually, these entrepreneurs, they are very creative, obviously, and that is the reason why, they don't go through the books. वो जो रटा हुआ इम्तिहान है उससे नहीं, वो चारों तरफ देखते हैं, actually practically they assess कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को इस तरह से हल किया जा सकता है. So वो जो हल निकालता है, तो that is the creativity, that is the talent he has, the innovative ideas he has. And once he forms the business, he is providing direct and indirect employment. Maybe, he direct an employment. Therefore, we, as I said, that we need more people who have to give jobs instead of more people who are looking for the jobs. Then there is, economic development. There's more fund and money flow into the Indian market. There is an increase in demand for related goods and services. And they also help in promoting the exports of the country. Because see, any country, if it depends only upon importing and importing all the time, that balance of payment agar negative chala jata hai, to bahut hi zyada pareshani hoti, because that country or that economy gets indebted to the other countries जिससे हम import कर रहे हैं, उस पे कर्जा बढ़ता चला जाता है, and we are, in a negative balance of payment. We are at a loss, as a loss. Therefore, and they also bring, with the innovation, they bring in new technology. So we can just conclude that if we promote entrepreneurship in any country, there are always new investments, new flow of money, including the international currency also, because when you are exporting, you are getting the international currency into your bag and you are accumulating that for your country. The entrepreneurship, they promote competition, and more the competition, it is always much better for any economy. Because when there is a competition, we always try to improve ourselves. हम अपने आप को improve करते हैं. That is the most important part, and therefore it helps and it promotes healthy competition in the market. There are more outsourcing of services. That means there will be more multiplication of businesses. For example, suppose if I am if a person is manufacturing cars. Now for manufacturing car, he will need spare parts. So now when he needs a spare part, then those units or those industries, businesses who are producing those spare parts, they are also getting more orders. Excuse me for a minute. Vibha, मैं session में हूँ. Session खत्म करके call करती हूँ. अभी मैं session में. So, and then there is lots of talent that generates. Then there is, obviously the cascading impact is on the people. That is because they are getting more job, they are getting more money in their pocket, they can demand more goods, and obviously the quality of life improves, the standard of life improves, and this leads to creation of wealth in any economy. So it is a win-win situation when we have more entrepreneurial forces in the economy. This was the first part of what I wanted to discuss. That is how this entrepreneur is important, and it is the necessity of any economy, because and with this I will just share with you one of the examples that of British India Company. BIC, what was that? It wasn't the Britishers that came into the country, it was that company. British India Corporation was a private company that entered the Indian markets or maybe Indian territories just seeking raw material.
and seeking human resources. They needed labor, they needed raw material, and they found that India is a rich, a country rich with all kind of resources. And gradually they expanded because the market was so lucrative. The market was so lucrative that it could not, they couldn't do away with that. कि एक बार कुछ दिन काम किया उनको लगा अरे अभी तो यहाँ बहुत है और है. So they expanded their textiles, they expanded their agriculture, and they came into almost every. और वो फिर इतना ज्यादा बढ़ गया कि they captured the whole country. They ruled the whole country. So that was because of entrepreneurship only. Because of, and then what they did was that they wanted to grab everything. They ruled us for 100 years as a businessman and using our country as a source of resources for them. So can you imagine the power of entrepreneurship? This is the power of entrepreneurship. So it is creation of wealth of any economy. Now we come to the next part. This was the first part, that is understanding how entrepreneurship is powerful. Coming to the second part, that is our population and what or where India is standing today. So we can see that today, if we talk about this, India stands with, I think, with the biggest population in the world, with about 65% of Indians being the dynamic young population under the age of 25. And do you know why do we call them dynamic? मतलब जो जिस country की आबादी 65% के आसपास 35 साल के नीचे की हो, that means that country is a young country. That is, we call them a dynamic, strong population. And because also that youth is, they are the most energetic. Young country का मतलब है majority हमारे पास youth है. And youth is the most energetic and productive section of any society. A country's ability and potential for growth are determined by the size and strength of its population. And because, this vast resource of young citizens entering the workforce, it has created a demographic dividend for the country, which means that the economic growth is the result of the population from because of the shift in the age structure. Because we have more hands to work rather than more mouths to feed. Jin countries mein, for example, in China, we find that adult population is much more than the young population. तो जो retired अगर किसी country में ज़्यादा होंगे, तो automatically वहाँ पे just excuse me for a minute, I'm getting an urgent call. हेलो, हाँ सेशन चल रहा है मेरा, जल्दी बोलो. तो तुम बेटा तुम खुद, तो वो किसकी है, मतलब अंडर ग्रेजुएशन? सेशन में हूँ मैं, उनसे अब वहाँ वार्डन, उनसे बोल दो परमिशन साथ में देनी चाहिए थी ना. उनको कैसे पता फिर वार्डन्स को? अब ये भी नहीं पता ना कि वार्डन्स कौन सी हैं. तुम बात कर लो, पता कर लो, ज्योति से पता कर लो. I'm so sorry, there was an urgent call I could not ignore. So coming to this, that why do we call them, this strong and dynamic? That is because we have less dependent people. अगर retired लोग ज़्यादा किसी country में होते हैं तो automatically dependent लोग ज़्यादा होते हैं. तो जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं उनका काफी इनकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है, डिपेंडेंट लोगों की तरफ. सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ जब सीन होता है किसी भी कंट्री में, जब पॉपुलेशन यंग ज्यादा होती है, calls for an economic trigger when a country has more hands available to work and in comparison to more mouths to feed. Because we can say that today's young generation are tomorrow's innovators, they are creators, builders, and they are future leaders. So
तो यहाँ पे इनका क्या सिनेरियो इस टाइम, लेकिन what we find that at this time जो इतनी population है, but at the same time the unfortunate part is that the unemployment level is increasing day by day. It is really, you know, it is getting so colossal that it is very difficult to manage it. Uh, and the irony is that in spite of growing educational, expansion of our higher education sector, maybe in the previous years, if you just pick up the data of the previous last 10 years, we find that it has comprehensively increased the number of colleges, the number of universities throughout the country. And in spite of that, and people are getting enrolled also. Young people, they are getting enrolled, they are getting admissions, they are getting education, they are getting their degrees, but still we find that our unemployment rate, in spite of educated youth, it has increased to a large number. And what is the reason? The reason is maybe they say that there are three kinds of, skill mismatch that is existing in the Indian background, maybe, because of which this unemployment is increasing, or maybe it cannot be controlled. One of the, recent document by FICCI, that is Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, they brought out a report which said that the higher education, it was something like this, that although India's higher education system, it contributed about 350,000 engineers and 2.5 million university graduate annually. And this number adds to the country's workforce, but at the same time we find that 5 million graduates, they remain unemployed. So, a large, and we can just, if you just go through lots of literatures and publication, we find that there is a strong mismatch between the education system that is existing and the jobs at a macro level, because we find there are overeducated people when the supply of educated workers seem to be much more than the demand in the labor market, which always leads to maybe wage reduction or lack of satisfaction, etc., etc. So now coming to these three different types of skill mismatch, the first is our overeducation, that is the population or the youth that is going for colleges and university, they are getting their education. Now that education system, they are overeducated for any types of posts, or most of the time we find at the individual level, maybe overeducation can be defined as a form of a skill gap, wherein overqualified people with tertiary education, they are hired for jobs or activities that do not require any kind of qualifications. And because of this oversupply of people for such jobs, the higher education, maybe it is used as a very transparent and easy screening method by the employer. Maybe, for example, you can say that एक example हम देखते हैं कि a postgraduate is in economics is hired as a bus driver. Maybe there are so many PhD holders, they are found, running their those vehicles, that is auto rickshaws on the roadside in metropolitan cities, क्योंकि उनको PhD करने के बाद भी वो नौकरी नहीं मिल रही है, वो पोस्ट नहीं अवेलेबल है, और इसलिए वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं या फिर बस में ड्राइविंग कर रहे हैं, whatever. This is called over education. What I will say here कि, और इसमें एक मसला और भी होता है काफी बार. Once I'm sure you all also have witnessed this thing, yes or no? आप ये चीज, Yes, ma'am. Yes. all around, I think now this is coming in small cities also. क्योंकि इतना आसान हो गया एजुकेशन. मैं चारों तरफ बच्चों को देख रही हूँ कि अभी अंडर ग्रेजुएशन किया, इसमें जॉब नहीं मिल रही है, तो चलो मास्टर्स भी कर लेते हैं, मास्टर्स के बाद चलो स्पेशलाइजेशन भी कर लेते हैं. सो दे आर स्पेंडिंग मोर नंबर ऑफ इयर्स इन देयर एजुकेशन. मतलब जैसे पहले जो है 20-21 साल, 24 साल, 23 साल में जॉब मिल गई, काम पे लग गए. एक होता था कि 23-24 साल में आप सेट हो जाना चाहिए. नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू मे बी 30 years of age.
कि अभी और पढ़ ले, थोड़ा और पढ़ ले, और उसके बाद दे लैंड अप वेयर, nowhere, because the jobs are not available, or maybe they are more educated than whatever posts are available. और इसमें एक चीज और है, मुझे लगता है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके डोमेन में अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर नॉट एजुकेटेड। जो लोग टेक्निकल या किसी भी हुनर के मालिक हैं, किसी भी स्किल को जानते हैं, तो वो इतने अनएम्प्लॉयमेंट उनके बीच में नहीं है उस सेगमेंट में। आई होप यू ऑल मस्ट बी ऑब्जर्विंग द सेम थिंग्स अराउंड यू कि हाँ, आप लोग कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हैं प्लीज। दैट इज व्हाट जी ओपी सिंह साहब जी बताइए। हाँ, डेफिनेटली मैम, ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे हमारे साथी नेट और पीएचडी करने के बाद बेसिक में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हायर एजुकेशन में जॉब नहीं मिल रही, या लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। जी तो जी ये एक बड़ा मिसमैच देखने को सोसाइटी में मिल रहा है। जी एक्चुअली देखिए, आप जो बात है ना, आप जो लोग स्किल्ड होते हैं या टैलेंटेड होते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इतनी मसला नहीं है, उनके पास इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई प्लम्बर है या कोई इलेक्ट्रीशियन है, ये काम जो है चारों तरफ अवेलेबल होता है, अगर वो मेहनती है तो उसको काम मिलेगा। मैडम, ओवर एजुकेशन जो है ये कहीं ना कहीं ईगो टकराने लगता है कि मैं छोटा काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रही थी कि ओवर एजुकेशन में कहीं ना कहीं फिर साइकोलॉजिकल एक वो आ जाता है कि नहीं, आई कैन नॉट, ये मेरी डिग्निटी से कम है ये काम। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब हम ये नहीं, और फिर दूसरा, उस बंदे ने उतना पैसा और टाइम भी खर्च किया होता है ना डिग्री लेने के लिए, एंड स्पेशली आप वैसे सिस्टम देखिए तो कई जगह पैसे लेके भी सर्टिफिकेट और हाई स्कूल वो डिग्री मिल जाती है, तो वो सोचता है कि नहीं अब इससे कम में तो हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आयरनी है हमारे सिस्टम में, मतलब अनफॉर्चुनेट आयरनी है कि ये इस तरह का मिसमैच जो है वो पढ़े लिखे लोगों को और नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मैडम सिस्टम में है कि हमारे यहाँ डिग्री किस तरह से बट रही है। आपको पता ही है कि लोगों को डिग्री दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी आपको चाहिए, हाँ। मतलब इवन आपको एमए है, पीएचडी है, और इस समय तो आपको दिख रहा है कि नीट जैसा एग्जाम जो है उसमें स्कैम इतना बड़ा है। जी। हाँ, तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में। हाँ, और आप ये देखिए, मतलब उस चीज की वैल्यू कम होती जा रही है ना, फिर ऑब्वियसली फिर उस चीज की वैल्यू भी कम है। मास्टर्स ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक हाई स्कूल या 12th क्लास तक के बराबर माना जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट तो करना ही करना है, और मे बी दे आर बाइंग देयर टाइम, मे बी, ठीक है ना। तो एक तो ये है। दूसरा सिस्टम जो हमारा क्वालिटी स्किल गैप है, स्किल मिसमैच इन टेक्निकल एजुकेशन है। कई बार क्या होता है कि टेक्निकल एजुकेशन में हम जो है वो ट्रेंड होते हैं, उस तरह से पढ़े होते हैं, लेकिन उस जगह पे नौकरियां नहीं अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मे बी यू नो दिस, इसमें भी ओवर एजुकेशन का ही रोल है, विच इज स्पेसिफिकली वेयर पीपल have received higher education in technical fields such as maybe agriculture या engineer हो गए, या MBA के लिए बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, काफी लोग क्यू में रहते हैं MBA करने के लिए या engineering करने के लिए, and maybe some technology other courses करने के लिए, they just end up working in jobs that do not require that kind of training. इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, उसने फिर अपनी दुकान खोल के बैठ गया, या फिर उसको कहीं भी कोई और सी नौकरी मिल रही है जो मैच नहीं करती है, वहां पे हो गया। सो मे बी फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, मतलब और बेहतर थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इज अपॉइंटेड एज मे बी डायरेक्टर ऑफ एनी फर्म, किसी भी फर्म का डायरेक्टर बना दिया गया, तो वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन क्योंकि वो उसको अपनी काबिलियत के हिसाब से कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो ही कॉम्प्रोमाइज्ड हियर। And therefore, you know, it is ये skill mismatch तब आता है when the person is hired, you know, differently from whatever qualification he has. तो कोई भी जॉब मिल जाए पकड़ लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर ये भी ना हाथ लगे, तो वो वाला जब कॉम्प्रोमाइज होता है, दैट इज स्किल मिसमैच। थर्ड इज द क्वालिटी स्किल गैप। इन क्वालिटी स्किल गैप व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, देखिए आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग सब पार्ट हैं, बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स हियर।
हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल है. I would say maybe 80 to 90% is just theoretical. और इसलिए उसमें क्या होता है कि वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती है बच्चों को जो उनको जॉब करने के लिए जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मे बी अ स्टूडेंट हु गेट्स ग्रेजुएट्स फ्रॉम कॉमर्स, बीकॉम करने के बाद वो 15-16 सब्जेक्ट पढ़ चुका होता है, ठीक है. सो मे बी ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट ही इज मास्टर ऑफ नन. अब कल को उसको अगर अकाउंटेंट की नौकरी मिलती है तो क्या होगा? वो अकाउंटेंसी पढ़े तो हुआ है, इम्तिहान दिया हुआ है उसने, मार्क्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद वो क्या जस्टिफाई कर पाएगा? नहीं. उसके लिए क्या करना होगा फिर कंपनी को? मे बी द कंपनी सेज ओके यू टेक 3 months फॉर ट्रेनिंग, जो शुरू में 3-4-6 महीने ट्रेनिंग के दिया जाते हैं. लेकिन लेट मी जस्ट मेक यू अवेयर ऑफ व्हाट लेटेस्ट ट्रेंड इज इन द मार्केट. नो कंपनी वांट्स टू स्पेंड देयर सैलरीज ऑन ट्रेनिंग देयर मैन पावर. वो ये कहते हैं कि नहीं, हम 3 महीने या 6 महीने की तनख्वाह इनको बिला वजह सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए क्यों दें? आप थोड़ा सा ट्रेन होके आइए. एंड देयरफॉर दीज डेज मोर फोकस इज ऑन इंटर्नशिप, कि प्रैक्टिकल इंटर्नशिप बच्चों ने कितनी करी है, वो सर्टिफिकेट या वो जो उनको मिलते हैं उस पे जो भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनके लिए. So this skill, quality, that means कि in spite of your degree, you cannot perform your job because you have not been practically exposed to that kind of a job. तो इसमें क्या है, कोई भी कंपनी अब वो कॉस्ट बियर नहीं करना चाहती है जो आपको ट्रेन करने में खर्च करना पड़े. एंड देयरफोर मे बी फिर वो कहते हैं कि ठीक है आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पहले आप जाके करके आइए. तो ये भी एक क्वालिटी स्किल गैप पाया जाता है 80% इंडियन बच्चों में. एक और बहुत इम्पोर्टेंट फीचर इन तीनों टाइप के अलावा भी देखा जाता है, एंड दैट इज जॉबलेस ग्रोथ. What is jobless growth? Actually, and it has been witnessed, since 2003 onwards. ये देखा गया था. That is maybe in spite of being qualified, in spite of being talented, still people were not getting job. They are not getting job. अभी भी काफी लोग ऐसे हैं. तो वो क्या करते हैं कि अपने आप ही कुछ सेल्फ काम शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मे बी जर्नलिज्म को आपने देखा होगा कि हाँ भाई हम जो है अपनी जर्नलिज्म खुद कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, हम वहां पे अपना, और जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे देन आई विल स्टार्ट अर्निंग. और मे बी a freelancer, he picks up the news from different places, or maybe he writes different articles and submit to different, and maybe tits and bits उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं, जब भी वो काम जमा करता है उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं. So that is a very substantial part of jobless growth, which it can be seen in India. Freelancing and personal, कोई भी जैसे अपनी पेंटिंग ड्राइंग बना के कि हाँ कभी ना कभी तो बिक जाएगी, इस तरह की चीजें भी बहुत है कि नहीं हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड में उसको या तो फिर आप प्रॉपर तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आए. सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. और इसके साथ साथ वी सी दैट जो लोग अपने आप काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हाँ भाई हम आर्ट में ड्राइंग में अच्छे हैं तो हमने पेंटिंग्स बनाई कि एग्जीबिशन लगा के बेचेंगे. So they are doing it in such an unorganized way. We find that 70% of the workforce, they are still engaged in informal or unorganized sector. Maybe चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोले, चाहे वो माइक्रो MSMEs, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पार्ट हो, दे डू नॉट प्रोवाइड अ वेरी, बिकॉज ये जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब काम हो रहा होता है तो दे डू नॉट प्रोवाइड अ वेरी वेरी स्टेबल एंड एश्योर्ड प्लेटफॉर्म. और इसके लिए डिस्पाइट the variety of initiatives and schemes for skill development that has been floated by the government, that is skill development mission या फिर national skill development mission या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस तरह का है, but still we find unemployment, and that's too on a very very mass level. So the problem which we can see is, I think it is very colossal, it is very huge.
और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है हमें क्या यहाँ पे कोई सवाल इस तरह का उठ सकता है, दैट इज आई थिंक अ वेरी बिग क्वेश्चन अराइजेस, जैसे अभी आप लोग ने खुद बोला, a very big question arises on the quality and pedagogy of our primary and higher education system. Education system and the quality of technical and vocational education and the training infrastructure. क्या आप लोग इस बात से अग्री करते हैं हमारी इस बात से कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी फॉल्टी है? डेफिनेटली मैडम, और इवन एनईपी 2020 जिसमें बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज लाए गए हैं, उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज लेवल पे नहीं है, सिर्फ बच्चों को सर्टिफिकेट डिग्री दी जा रही है, कहीं उनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और कल को ये होगा कि इतने लाख यूथ को हमने वोकेशनल ट्रेनिंग दे दिया और उसके बाद भी वो जॉबलेस हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हाँ डॉक्टर सिंह, आई थिंक आप मुझसे अग्री करेंगे, बिकॉज आई फील दैट इफ वी आर एक्चुअली वी आर इन अ रैट रेस। हम क्वांटिटी प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं, हम क्वालिटी पे शायद दिमाग ही हट गया है हम लोगों का। डेफिनेटली और ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आई अप्रिशिएट दैट एटलीस्ट दे हैव मेड एन एफर्ट्स आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी पॉलिसी बने, कोई भी, बहुत सारी पॉलिसीज हिंदुस्तान में, लेकिन जब तक उसका जेन्युइन लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक के आई डोंट थिंक कि उसका इफेक्टिविटी या इम्पैक्ट दिखेगा। जैसे आपने बोला कि हाँ वोकेशनल कोर्सेज इस तरह से कराए चले जा रहे हैं और डिग्री सर्टिफिकेट बढ़ती जा रही है। अभी तो मैं ये कहूंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोई भी एक बैच पूरी तरह से नहीं होके निकला है फील्ड में, तो इम्पैक्ट उसका भी हम नहीं असेस कर सकते। बट आई फील कि आपकी बात सही है कि अगर ये है तो वोकेशनल कोर्सेज की भी फिर होड़ बढ़ जाएगी, इंस्टेड ऑफ understanding what is the actual purpose of including in skill and vocational courses, फिर वो काउंटिंग में शुरू हो जाएगा। हेलो मैम। जी गौरी सर। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जी मैं डिगबॉय से हूँ, आसाम से हूँ। तो यहाँ एक रिफाइनरी है, तो यहाँ जो लड़के ITI में जाते हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं, उन्हें जॉब मिल जाता है। ओके। अगर कोई बच्चे यहाँ MSc MA करते हैं, इसके बाद में फिर आगे जाके PhD करते हैं, तो उनका तो आधा उम्र तो वहीं में गुजर जाते हैं, तो बाद में उन लोग को स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस से जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है वही ऐसा करना सही होगा। यहाँ तो अभी ढेर सारे कोर्सेस अभी हम लोग ने चालू की है कॉलेज में, लेकिन ऐसा फायदामंद नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज तो सब सेक्टर में है नहीं, ऑयल सेक्टर में है यहाँ। वही बात है मैम। बिकॉज देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग क्या, ऐसा नहीं, हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में भी प्रैक्टिकल चीजें अगर जेन्युइनली अर्नेस्टली नहीं इम्प्लीमेंट क्यों होती। फॉर एग्जांपल देखिए, डिसर्टेशन है या समर प्रोजेक्ट हम लोग क्या सब क्या होता है, बच्चों को करना होता है ना, व्हाट आर दे एग्जैक्टली डूइंग? क्या वो 100% बच्चे जाके कहीं इंटर्नशिप करते हैं या डिसर्टेशन करते हैं जेन्युइनली? आई डोंट बिलीव दैट। व्हाट आई लुक अराउंड इज दैट कि नहीं, वो तो सिर्फ कहीं भी गए, उन्होंने उसको कॉपी पेस्ट करा इंटरनेट से, आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल, एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड वर्किंग इन द ऑफिस या कहीं भी जाके उस पे प्रैक्टिकली काम करने के बाद रिसर्च करके डिसर्टेशन तैयार करें। क्योंकि उनको जो बेसिक एसेंस है ना इस बात का कि डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट का मकसद क्या होता है, उनको एक सेमी ट्रेनिंग देनी कि आपको इस डोमेन के बारे में जानकारी है, आगे फिर आप इस पे अपना काम या जॉब में जा सकते हैं। और होता क्या है, जब जॉब में जाते हैं, क्योंकि सब खुद तो कभी किया नहीं होता है, कॉपी पेस्ट करके क्या होता है, वहां पे कुछ बता ही नहीं पाते हैं जब तक कि क्वालिटी इस तरह से। लेकिन आप देखिए कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे मॉडल पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी इन बेंगलोर, इसी तरह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन बॉम्बे मुंबई, इन लोगों की जो इंटर्नशिप है या जो प्रोजेक्ट है वो प्रैक्टिकली बच्चे जो 20-20 दिन फील्ड में रह के काम करते हैं, सीखते हैं, और जिसके साथ काम करते हैं वो भी इनका एग्जाम लेते हैं, वो भी इनकी रिपोर्ट बना के भेजते हैं। तो जब तक ये बच्चा, चाहे वो सिंपल MA भी कर रहा हो, लेकिन वो फील्ड के लिए तैयार हो गया होता है काम करने के।
तो वो सिस्टम ज्यादातर कॉलेजेस में, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में काफी हद तक मिसिंग है अगर हम ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी अभी तक अडॉप्ट करे हुए हैं। तो सो दिस इज एन, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। ठीक है, तो ये मेरे सेशन का सेकेंड पार्ट था, दैट इज फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप। द सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो ऑफ द यूथ पॉपुलेशन एंड द एजुकेशन सिस्टम। एंड आई एम श्योर जो आप लोग की बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है, आप लोग सब अवेयर हैं कि ये कितना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट अपनी वजह से है, स्लो डाउन है इकोनॉमी में अगर है तो उसकी वजह से शायद हो, लेकिन ज्यादा मसला ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा सा फॉल्टी है, जिसमें करेक्शन की जरूरत है। Now, government has also realized maybe this that no, unemployment का मसला सिर्फ और सिर्फ जॉब कैसे दी जाए थी, तो entrepreneurship is another solution. So let us see, पहले इसको देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए। So government, you know, they have lots of action plan, बहुत सारे हैं इनके, mainly you know startup और ये सब चीजें हैं। Startup India, which focuses on three areas, that is simplification and handholding, funding support and incentives, industry, academia, partnership and incubation. Actually, the third point is what I want to focus on, कि government ने बहुत सारी योजनाएं निकाली, maybe तो इन तीनों को मैं जरा से डिटेल में एक नेक्स्ट स्लाइड में लाके डिस्कस करती हूँ। ये है हमारा हैंड होल्डिंग, फंडिंग इंसेंटिव्स एंड एकेडेमिया पार्टनरशिप। तो हैंड होल्डिंग तो आपका जो है, इन्हीं ने, गवर्नमेंट ने अपने सारे लीगल सेगमेंट्स, बैंकिंग सिस्टम, इन सब में कुछ पॉलिसीज, कुछ डेवलपमेंट इस तरह से करें जिससे कि वो उन चीजों को बहुत आसान बनाया है, लीगल प्रोसीजर्स को आसान बना दिया है, जिससे कि अगर कोई कारोबार करना चाहे, अपने को रजिस्टर कराना चाहे, फॉर एग्जांपल रजिस्टर कराने के लिए आप पहले ऑफिस टू ऑफिस थोड़ा सा दौड़ना पड़ता था, बट नाउ दे हैव डन इट ऑल online on the Udyam portal, where you just have to submit all your papers, and उसमें जो रेड टेपिज्म भी कम होती है और ऑनलाइन में आपका जो सबमिशन हो जाता है। इसी तरह से IPR या फिर एग्जिट प्रोसेस, इन सबको बहुत सिंप्लीफाई करा हुआ है। और जहां जहां पे जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं उनकी हेल्प भी करने के लिए कंसल्टेंट्स और एडवाइजरी बोर्ड भी होता है, मेंबर भी होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं। दैट इज कॉल्ड हैंड होल्डिंग, हेल्प करना आगे बढ़ के कि मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ। इसी तरह से दूसरा फंडिंग इंसेंटिव्स, बैंक्स में सिडबी स्पेशली जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, देन कैनरा बैंक जो इनका आपका जो MSMEs को केटर करता है, दे आर प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ फंड्स, दे आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी, देयर आर लॉट्स ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट दिस एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। Coming to the last part, because the last point, that is incubation, that is what I said, that it is this industry, academia, partnership and incubation. So actually what is incubation or incubator क्या होता है? Incubator is वो एक मशीन होती है, जब बच्चा पैदा होता है और अगर कमजोर होता है, उसको थोड़ी सी मजबूती देनी होती है, तो उस इंक्यूबेटर में रखा जाता है उसको कुछ दिनों के लिए, and when he is healthy enough उसको बाहर भेज दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है। Similarly, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लेवल पे इंक्यूबेशन सेंटर्स को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। दैट इज इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, दैट इज द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, दे शुड गो इनटू पार्टनरशिप। और इसीलिए अब जो है प्रोफेसर्स की भी पोस्ट निकाली गई हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काफी एक्सपर्ट्स हैं, बहुत पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर गिवन अ चांस टू बिकम अ पार्ट टाइम प्रोफेसर्स, मे बी विजिटिंग प्रोफेसर्स, so that the education sector can have their advantage, especially maybe जिनको कारोबार में आगे जाना है। So here और यहीं पे incubation centers भी बनते हैं। For example, Aligarh Muslim University, we have incubation and innovation center, where all kind of researches are done for those who have a product idea or a service idea. उनको पूरी तरह से हेल्प करा जाता है, नर्चर करा जाता है, वहाँ पे उनको फिर फंडिंग फैसिलिटी भी दिलवाई जाती है, उनको मार्केटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है व्हाट एवर हेल्प दे नीड। और इस तरह से वो बच्चे फिर, उनको एक ऑप्शन, जिन बच्चों के पास एक ऑप्शन है कि हमें कारोबार करना है, तो इंडस्ट्री लेवल पे एक ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडस्ट्री लेवल पे उनको नर्चर किया जाए, उनको
सारे तरह का सपोर्ट सिस्टम दिया जाए so that they are ready for the market to go out and work as an industrialist or become have their own startups. तो इस तरह की ये गवर्नमेंट की हमारी प्रॉपर वो है प्लानिंग है जो कि 3 फेजेस में या 3 पॉइंट्स के बेसिस पे इनका काम चल रहा है सारे एरिया में, सारे डोमेन्स को ये कर रहे हैं एंड they have been quite successful also, but again I would say कि maybe अवेयरनेस अभी भी स्कीम के बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है, अभी भी लोगों को काफी जानकारी नहीं हो पाती है एंड मे बी आई वुड से पर्सनली कि बैंकिंग एंड ये प्रोसीजर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है, इनको अभी और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है. And the third is coming to the third part and then coming to this. Yes, okay. Now all the efforts of the government is to develop more and more entrepreneurs. So let us first answer the big question that whether it is a soft skill or it is an art or a science, because if the government is working hard to build it or develop it, तो वो क्यों वो मतलब क्या ये develop किया जा सकता है? Is it working in the right direction? So I would say yes, it is working in the right direction. The reason is that because it is a soft skill, जो लोगों के अंदर entrepreneurial थॉट प्रोसेस या माइंडसेट ऑलरेडी होता है या टैलेंट होता है, तो वो तो एक कुदरती चीज होती है, वो अपने आप भी किसी ना किसी तरह से कारोबार कर लेते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को दिमाग में प्रोडक्ट का आइडिया या सर्विस का, स्पेशली आई हैव सीन दिस इन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट, they know how to make a product, they have learned, and उनका जब फाइनल सेमेस्टर में आते हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस उनके दिमाग में डेवलप हो चुकी होती है या प्रैक्टिकली लैब में वो कर चुके होते हैं, बट दे डू नॉट नो ABCD ऑफ हाउ टू गेट द फंड्स, हाउ टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, how to put the product in the market and sell it, how to price it, how to cost it. तो वो और या फिर अगर बैंक से लोन लेने जाना है या फंड लेने जाना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाया जाए, ये सारी चीजें नहीं आती हैं उसे. तो एंटरप्रेन्योरशिप एक अपने आप में सॉफ्ट स्किल है जो कि इस तरह से उसको अगर डेवलप कराई जाए, ऑल दोज पीपल हु आर स्किल्ड, बहुत सारे मैंने देखा अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस में घर घर काम हो रहा है, स्पेशली वो वाली इंडस्ट्रीज जिस सिटीज में वो इंडस्ट्रीज मशहूर है, फॉर एग्जांपल लेदर इंडस्ट्री इन कानपुर और आगरा, और मे बी मुरादाबाद में ब्रास की इंडस्ट्री, अलीगढ़ में पत्ती या लॉक वर्क है. घर घर में दे आर सो स्किल्ड टू मेक अ प्रोडक्ट, बट दे डू नॉट हैव अ विजन, दे डू नॉट, वो कहीं मजदूरी पे काम करते हैं और उसके बाद वहां पे उन्हीं को बना बना के देते हैं. दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर द होल लाइफ. हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन इसमें से कुछ होते हैं जो इनके अंदर पोटेंशियल होता है, अगर उनको ट्रेन करा जाए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया एंड दे कैन डेवलप देमसेल्व्स इनटू दैट. तो ये एक, और ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है that it is a science as well as an art and it can be nurtured and it can be developed. So now the question comes at how should we do it? How should we, what are the options that are available? So here I would say, since we have been discussing this, that our education system is too focused on grades and careers instead of being oriented towards innovation or maybe practical insights. तो हमें लगता है सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और थोड़ा सा उसको जो ग्रेड सिस्टम है ना बचपन से, और उसमें से हम आप भी पार्ट हैं. बचपन से हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हम उनको सिर्फ फर्स्ट आना है क्लास में, मार्क्स अच्छे आना है, फर्स्ट डिवीजन आना है, वी कीप पुशिंग देम एंड वी डू नॉट रियलाइज कि 5-7 साल में हमने उस बच्चे को एक रैट रेस में शामिल कर दिया है जो स्कोर के अलावा उसको कुछ और नहीं समझ में आता है. तो आई थिंक, और उसी से हम बच्चा चाहे डिफरेंटली बहुत अच्छे तरह से टैलेंटेड हो, लेकिन हम उसके टैलेंट को देखते ही नहीं जब तक कि उसके हाईएस्ट मार्क्स नहीं आते हैं. So this mindset has to be changed, and therefore I think इसमें जो है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, बिकॉज दैट कैन नॉट बी डन इसके बगैर जो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है. टेक्निकल हायर एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स, दे आल्सो हैव टू बी इम्प्रूव्ड. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको कोशिश करी गई है इसको इम्प्रूव करने की, and they have also tried to contribute to social inclusion, productivity, decent employment for all, etc., etc.
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात यहाँ पे रखूंगी अपनी कि एक द स्किल डेफिशिएंट जो है इंडिया में अगर है, इट रिक्वायर्स अ पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कि इसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से शायद कोशिश करी गई है। अभी 4-5 साल बाद इसके रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि अभी वो बैच कंप्लीटली वो आया नहीं है मैदान में उतर के, अभी वो मेरे ख्याल से 3rd या 4th ईयर पे पहुंच रहा है। तो उसमें जो है, बिकॉज आई थिंक, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है देयर हैज टू बी अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड द सिविल सोसाइटी। जो मैंने अभी बात की ना, सिविल सोसाइटी मतलब हम और आप। पहले हमारा अपने लोग का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में हुआ क्या है, जो सबसे बदकिस्मती से ये हुआ कि द BIC दैट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, और फिर ब्रिटिश ने 100 साल यहाँ पे रूल करा, उन्हीं ने हमारे एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन लेकर ही, जो शायद CBSE बोर्ड और ये सब अभी तक चलता चला आ रहा है विद माइनर चेंजेस। तो वो पैटर्न उन्हीं ने लेकिन यहाँ पे लाके वो करा था कि उनको क्लर्क्स चाहिए थे, दे नीडेड टू प्रोड्यूस क्लर्क्स, एंड देयरफॉर they introduced that education system that okay, we will train you, we will give you a syllabus, उसको रटिए और वो रट जाएगा तो उसी हिसाब से आप काम करेंगे मार्केट में। और फिर धीरे धीरे उसी पे और इम्प्रूवमेंट हुआ और वो सब करते चले गए। आज का अगर आप एजुकेशन सिलेबस करिकुलम कंपेयर करेंगे विद ब्रिटेन एंड इंडिया, जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। हमने इतने सालों में, अब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए उस चेंजेस को लाने के लिए। वहां पे सारी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट तरह से कराई जाती है, इवन योर आर्ट्स पेपर, ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट। वो बुकिश या वो रैट रेस वाली चीज वहां पे इतनी है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है। जितनी भी मार्किंग है, जितना भी इवेल्युएशन है, वो प्रैक्टिकल बेस है। तो बच्चा अगर डिफरेंटली टैलेंटेड है तो उस पे भी उसको स्कोर मिलते हैं और वो उसमें एक्सेल करता है, एंड देन मे बी उसको उसी तरह की ट्रेनिंग में भेजा जाता है। सो सिविल सोसाइटी का अगर माइंडसेट जब तक नहीं चेंज होगा, तब तक हम अपने बच्चों को या नेक्स्ट जनरेशन को डिफरेंट सेगमेंट्स में नहीं प्रमोट करेंगे। एंड ऑब्वियसली एक पार्टनरशिप जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी तभी बना सकती है जब इंडस्ट्री भी आके और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये सब मिलके काम करे। Universities and colleges, because they are the threshold for the youth to enter the employment market, and therefore steps have to be taken. Secondly, I think higher education in India अभी बहुत बड़ा revolution मांग रहा है। It is, you know, और यहाँ पे आप इनको explore कर सकते हैं, इनको वो कर सकते हैं कि जिससे you know, I say that tap when they are young, क्योंकि जितना young होता है बच्चा, जितना छोटा होता है, easy होता है उसको मोल्ड करने के लिए, मोल्ड करने में। So here, you know, it becomes, you know, very necessary that we blend our theoretical and conceptual knowledge and we come into more practical part. For example, देखिए अगर accounts जैसा पेपर पढ़ाना है बाहर USA में या यूरोप में, they teach them maybe few classes for theory and principles, और वो सब समझाने के बाद फिर वो क्या करते हैं, they send the student to work in some work with some office or work to some maybe firm, and just understand that how they maintain their books of account, and then just try to understand that how those theories which were taught to you, they are implemented in the practical work. और वो जब उस फॉर्म में जाके कुछ दिन काम करता है, इट इज अ टाइप ऑफ मे बी इंटर्नशिप, बट दे कॉल इट मे बी सम क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस। इसी तरह से वो सारे पेपर्स को इस तरह से पढ़ाया जाता है। सो दैट इज मिसिंग, यू नो। एंड व्हाट हाउ कैन बी, एक एड ऑन और भी मैंने ऑब्जर्व करा है दूसरी जगह पे, स्पेशली एक स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी में मैंने देखा, एंड इवन इन रशिया एंड मॉस्को में, रशिया में मॉस्को में आपके ये कॉलेजेस हैं स्पेस इंजीनियरिंग के, स्पेस साइंसेस के। व्हाट दे डू, द लास्ट सेमेस्टर इज लेफ्ट फॉर प्रोजेक्ट ओनली। वो हमारे क्या भी होता है, ठीक है ना, लास्ट सेमेस्टर में ये बच्चे प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, बट विद द प्रोजेक्ट वर्क दे गिव अनदर चॉइस टू द स्टूडेंट टू गो फॉर देयर ओन बिजनेस, क्योंकि जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोडक्ट या सर्विस पे वो बच्चा बनाएगा, डेवलप करेगा, उससे बोला कि अगर तुम इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो तुम कर सकते हो। नाउ व्हाट हैपेंस हियर
कि जब वो बच्चा, उस बच्चे को फिर सारा इंक्यूबेशन फैसिलिटी दी जाती है, दैट इज ही इज टॉट अबाउट द बैंकिंग, ही इज उसको मुलाकात कराई जाती है बैंकर्स से, इन्वेस्टर्स से, इंश्योरेंस वालों से, मार्केटिंग एक्सपर्ट से, एंड ही लर्न्स एवरीथिंग, ही एंटर्स द मार्केट, ही सेज हमारे प्रोडक्ट की मार्केट, एंड देन बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर ही हैज टू एस्टैब्लिश हिज बिजनेस आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड, लीगल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, एंड ही गेट्स मार्क्स फॉर दैट। उसके जो फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स है वो उसी पे होता है। तो आप देखिए ना, इट इज सच अ गुड आइडिया दैट उसका एक मार्क्स और क्रेडिट भी मिल गया उसका, और उसका एक कारोबार भी शुरू हो गया। आगे कितना सक्सेसफुल होता है वो उस बच्चे पे भी बहुत डिपेंड करता है, और लेकिन इसी बहाने उसका एक कारोबार या एक प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली डेवलप हो गया। सो व्हाई कांट वी डू द सेम थिंग इन अवर कंट्री? व्हाई डोंट वी मे बी सूनर और लेटर ये आ जाएगा, इंडिया में भी आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी में जितने भी पेपर्स पढ़ा जाए उसमें 70 से 80% पोर्शन जो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में आई फाइंड देयर वाज अ स्टूडेंट हु वाज लर्निंग मास्टर्स इन डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट मीन्स दे वर टॉट टू कंट्रीब्यूट इन पॉलिसी मेकिंग, कि आप पॉलिसी कैसे हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने में। सो यू नो दे वर सेंट, पहले सेमेस्टर से ही उनको 20-25 दिन के लिए फील्ड में भेजा जाता था, मे बी टू आइसोलेटेड रूरल एरियाज, टू मे बी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज, जहाँ पे सिर्फ जो है जंगल है, वहां पे भी कुछ लोग बसे हुए हैं। वहां पे जाके वो बच्चे रहते थे, उनकी प्रॉब्लम्स देखते थे, समझते थे, और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स को नोट करते थे, फिर उनसे डिस्कस करते थे कि अगर इसके लिए हल निकालने के लिए पॉलिसी बना देती गवर्नमेंट, डू यू अग्री? तो दे यूज टू टेक इन ओनली दोस थिंग, क्योंकि उनके फीडबैक से कभी कभी हम लोग को ये भी पता चलता था कि 50% बातों पे वो लोग ही मना कर देते थे, नहीं वी डोंट वांट एनी इंटरवेंशन। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें देंगे कि एक गांव में पानी की सुविधा नहीं थी, तो औरतें जो है वो 6-7 घंटे दूर जाके फिर पानी भर के लाती थी घड़ों में और बाल्टियों में अपने। तो व्हाट हैपेंड दैट नाउ दीज स्टूडेंट्स वे वर्किंग इन दैट डोमेन, और वो उन्हीं ने ऑब्जर्व करा, उन्हीं ने कहा भाई ये तो बड़ी मेहनत का काम है, ये 4-4 घड़े भर के जाती हैं और पानी भर के लाती हैं। तो देवर फिर इन्हीं ने लोगों से बात करा कि अगर आपके गांव में नल और पानी का पूरा प्रॉपर इंतजाम हो जाए, वी विल बी रिकमेंडिंग दिस प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट। द फीमेल्स दे जस्ट रिफ्यूज, दे स्ट्रिक्टली रिफ्यूज कि नहीं हमें कोई पानी की सुविधा नहीं चाहिए। व्हाई? दे सेड कि ये हमारा मी टाइम है, होता है ये जब हम लोग जाते हैं सब ग्रुप बना के, तो ये हम लोग पूरे दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ये टाइम होता है जब हम अपनी दोस्तों से मिलते हैं और हम अपने मन की बात करते हैं और बातें करते हुए जाते हैं, वो हमारा मी टाइम होता है। एंड दीज स्टूडेंट्स, द रिसर्चर्स वे जस्ट शॉक्ड कि अरे ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सूनर और लेटर पानी पहुंचा वहां पे सब कुछ हुआ, लेकिन इस तरह की भी इंटरवेंशंस होते। तो यू नो द स्टूडेंट शुड बी, आई थिंक हायर एजुकेशन में इस चीज की अब बहुत सख्त जरूरत है कि दे शुड बी लेफ्ट ऑन द फील्ड प्रैक्टिकली टू ऑब्जर्व, टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड। तो वो अपनी चीजों को सिर्फ किताब से एक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड तो इस तरह से हमारा जो है, स्पेशली अगर साइंस आर्ट्स कोई भी, अगर लास्ट सेमेस्टर में जो है प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इनको एक ऑप्शन ये भी दे दें प्रोजेक्ट वर्क या ट्रेनिंग इंटर्नशिप के साथ साथ, कि आप अपना ऑप्शन ऑफ स्टार्टअप है, एंड इफ दे मार्केटेबल आइडियाज और आउटपुट से के साथ अगर वो आता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे है, उसको हेल्प करा जाए इनिशिएट करने में, एंड उसके बेसिस पे उसको मार्किंग कर दी जाए, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। इसी तरह से और भी प्रैक्टिकली पेपर को फील्ड स्टडी, फील्ड वर्क, इंडस्ट्री फर्म में भेज के वहां पे भी छोड़ना चाहिए, दैट शुड बी डन। देन सेकेंड इज द स्कूल लेवल, व्हाट इज हैपनिंग एट द स्कूल लेवल। नो डाउट, आई एम श्योर आप लोग भी जानते हैं कॉमर्स पढ़ाया जाता है, एक ऑप्शन है, थर्ड ऑल्टरनेटिव है, लेकिन मैं और छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। व्हेन वी स्टार्ट विद मे बी क्लास 3, क्लास 4 ऑनवर्ड्स, क्लास 1 ऑनवर्ड बच्चे की साइंस की किताब होती है, बच्चे की सोशल साइंस की बुक्स होती है, बट देयर इज इंग्लिश की होती है, हिंदी की होती है, देयर इज नो बुक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, देयर इज नो सिलेबस। तो क्यों नहीं वहीं से माइंड तो इंजीनियर, डॉक्टर या टीचर या ये बनने का ही ऑप्शन दिया जाता है। तो जब तक वो बच्चा 9th-10th में आता है, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप एक पेपर होता है, आई नो ऑप्शनल पेपर भी होता है और कुछ पोर्शन दिया गया है, बट एक
ये स्कूल लेवल पे एक मुझे लगता है कि और भी रिगरस एक्सरसाइज और वर्कआउट करना पड़ेगा। और ये मैंने लेकिन देखा है आईबी बोर्ड में, जो इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं उन्हीं ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है, बट दे डोंट हैव एनी बुक्स और सिलेबस ऑफ दैट काइंड। दे जस्ट गो विद प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, कि बच्चों को एक प्रोडक्ट बनाने को दिया गया, मे बी समथिंग वर्चुअल और मे बी वॉट एवर उनकी कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल जो क्राफ्ट वर्क की चीजें वो बनवाई गई और फिर फेट लगाया गया, या उनको कहा बेचिए, फिर या पैकेजिंग या मार्केटिंग अगर करना है तो कैसे बेचने जाओगे। तो दे जस्ट दे आर जस्ट डेवलपिंग द क्रिएटिविटी इन देयर इन दोज स्टूडेंट्स। तो स्कूल लेवल पे जो है और ज्यादा मेंटोरिंग होनी चाहिए। Then the government of developing countries, they need to facilitate more research and development through easy financing, so that the young population, they are motivated towards R&D to bring out something more innovative. Then there should be obviously ease of doing business. जो मैंने कहा अभी भी बहुत सी चीजें complicated है, क्योंकि मैं जो प्रोग्राम कराती हूँ उसमें जब हम बैंक के पास पार्टिसिपेंट्स को अपने भेजते हैं तो वो बैंक के पेपर्स इतने मांगे जाते हैं कि वो बेचारा he gets demotivated, तो कहता नहीं भाई बैंक से कर्जा नहीं लेंगे, इससे अच्छा है कि हम कहीं और प्राइवेट उससे चले जाए ले ले। तो that ease of doing business has to be further worked out, जो अभी इतना ज्यादा नहीं है। We introducing maybe हमारा टैक्स रिजीम और भी चीजें वो तो साइड में है, खैर वो सब होनी चाहिए। एंड फर्दर मे बी हायर एजुकेशन को और एनरिच कैसे कर सकते हैं फॉर टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, मे बी ट्रांसफॉर्मिंग देयर थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मींस कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए, जो मैं बार बार कह रही हूँ। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं कि आप जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने कॉलेजेस में बुलाएं फॉर लेक्चर्स, फॉर नेटवर्क्स। आप फेट ऑर्गेनाइज करें, उसमें लोगों को बुलाइए और फिर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इफ यू बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन आप मेंटरशिप करते हैं, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड के लोगों से उनको मिल रहा है। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सी चीजें दिमाग में ऐसे नहीं आती कि मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को देख के स्टूडेंट जो है इतना इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस्ड होता है कि वो सोचता है कि नहीं अब हम जो है थोड़ा सा और डेवलप कर सकते हैं, हम इसकी तरह बनना चाहते हैं। हमेशा हम साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, तो इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को भी और लाना चाहिए, शोकेसिंग करना चाहिए, अपने क्या सेमिनार्स और प्रोग्राम्स करने चाहिए, सो दैट दे गेट मोर एक्सपोजर। एंड प्रैक्टिकल लर्निंग में फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मैं अपना ही जो श्योर वर्कशॉप कर रही हूँ उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये वर्कशॉप जो मैं करा रही हूँ, इट इज श्योर दैट इज MOU विद यूनिवर्सिटी इन USA। what happens here is ये 3 महीने लंबी वर्कशॉप होती है, हर संडे को इसका सेशन होता है, सिर्फ संडे होता है। द वीकडे इज गिवन फॉर देम टू डेवलप देमसेल्फ। जो चीज सीखी है उसको आप अप्लाई करिए, इम्प्लीमेंट करिए। फॉर एग्जांपल लीगल सेशन हुआ तो लीगल सेशन, यहाँ पे ज्यादातर सेशंस कोई टीचर्स नहीं लेते हैं। लीगल सेशन होता है अगर, तो लीगल सेशन में कॉर्पोरेट लॉयर्स, कमर्शियल लॉयर्स आते हैं जो कि सेशन लेते हैं। दे टेल देम कि कैसे आप रजिस्टर करा सकते हो, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है। तो इसमें से जो पार्टिसिपेंट्स हमारे होते हैं उसमें से जिनको अपना फॉरेन एस्टेब्लिश कराना होता है हम उनको उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर भी कराते हैं। कुछ लोगों को जेम पोर्टल पे कभी कभी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसी तरह से अकाउंटिंग, प्राइसिंग, कॉस्टिंग, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं पढ़ाने और वो बताते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट कैसे लगाइए, प्राइस कैसे लगाइए, प्रॉफिट्स कितना मार्जिन रखना चाहिए। और क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स अलग अलग सेगमेंट के होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बुटीक वाले लोग हैं या कोई लॉक इंडस्ट्री के लोग हैं या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबकी क्वेश्चंस या क्वेरीज अलग अलग होती हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से वहीं पे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें इसी तरह से सारे सेशंस होते हैं, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो ये कि मैं अपने कॉमर्स के, मैनेजमेंट के और इकोनॉमिक्स के बच्चों को भी पार्टिसिपेट कराती हूँ। और उनका क्या काम होता है, उनको सीखना नहीं होता, उनको बुकिश नॉलेज बहुत है इसके बारे में, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लेकिन उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। सो व्हाट हैपेंस, जो लोग कारोबार शुरू करने जा रहे हैं और वो हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट हैं जिनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनको कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि अंडर प्रिविलेज क्लास ज्यादातर होता है और
कम पढ़ा लिखा क्लास होता है, लेकिन वो टैलेंटेड बहुत होते हैं, स्किल बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रिशियन आया, उसने जो है बिजली का काम करता था और उसको अपनी दुकान खोल ली थी, तो उसने कहा दुकान कैसे रजिस्टर कराएंगे, पैसा कैसे आप दिलवा दीजिए बैंक से मुझे, तो इस तरह से वो आया था। तो ये बच्चे जो है फिर उस बंदे का प्रोजेक्ट प्रपोजल बनवाते हैं, बैंक में जाके उसके फॉर्म भरवाते हैं, बैंक में लोन अप्लाई करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल पे कराते हैं। तो व्हाट नाउ, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो जो स्टूडेंट हमारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जब वो हेल्प कर रहे होते हैं, दे बिकम फैसिलिटेटर, तो ये हेल्प करने के दौरान ही ये काफी हद तक सीख जाते हैं और उनको पता होता है कि हाँ ये हमने किताब में सीखा था, लेकिन प्रैक्टिकल करने में ये तो बहुत ही फर्क है। तो ये बहुत ही रिच वर्कशॉप है, which I think more colleges and universities can adopt, and they can also run in their places in order to help the students to get experiential learning or experiential practical experiences. वो उनके लिए इंटर्नशिप की तरह भी होती है, क्योंकि 3 महीने लंबी होती है। जो बीच में 1 हफ्ते का टाइम होता है, ये बच्चे जो उन पार्टिसिपेंट्स को हेल्प कर रहे होते हैं, 1 हफ्ते बाद आएंगे, फिर बताएंगे हाँ भाई इस हफ्ते हम लोग ने उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया, इस हफ्ते हम लोग DIC गए थे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वहां पे हमने रजिस्ट्रेशन फला स्कीम में करा दिया क्योंकि गवर्नमेंट की। तो इस तरह से वी फाइंड अ स्ट्रॉन्ग कोहेजन बिटवीन the participants and the students gain their practical exposure experiences, और एंटरप्रेन्योर्स का उनके कारोबार काफी लोगों के एस्टैब्लिश, हम लोग 30-35 बिजनेसेस स्टार्ट करा चुके हैं अभी तक के। और यूजुअली वी हेल्प पीपल हु आर लिविंग अराउंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड दे आर अंडर प्रिविलेज, स्पेशली फीमेल पीपल। हमारे यहाँ पत्ती का काम होता है, घर घर काफी औरतें जो हैं पत्ती का काम करती हैं, लेकिन वो मजदूरी पे करती हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। तो उनको फिर सिखाया जाता है कि नहीं, आपको हम ऐसे करवाते हैं, आप अपना कारोबार शुरू करिए। तो कई लोगों ने जो है 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना छोटा छोटा बिजनेस शुरू कर दिया है। तो दिस इज व्हाट द श्योर प्रोग्राम इज, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट दिस इज, ये हमारे क्या वर्कशॉप की तरह हो रहा है, लेकिन US में ये जो प्रोग्राम होता है वो होता है, वो पढ़ाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप पेपर इस तरह से। आप देखिए कैसे प्रैक्टिकली पढ़ाए। जो बच्चे ऑप्ट करते हैं, ऑप्शनल पेपर है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, जो बच्चे ऑप्ट करते हैं उनके अंडर में 2-3 एंटरप्रेन्योर जो लोग बनना चाहते हैं वो लाके दिए जाते हैं, और ये बच्चे उनको हेल्प करते हैं उनका बिजनेस स्टार्ट कराने में। और बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर वो बिजनेस जब स्टार्ट कर चुके होते हैं या नहीं कर पाते होते हैं, वो लोग जो इनका फीडबैक देते हैं, फीडबैक रिपोर्ट जमा करते हैं, जिसके बेसिस पे इनको मार्क्स मिलते हैं। प्लस इनकी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसका जो रिपोर्ट बना के सबमिट करते हैं, उसके बेसिस पे इनको मार्क्स मिलते हैं। सी हाउ द सिस्टम इज सो रिच देयर। तो वो बच्चा जब करा चुका होगा अगर 2-3 लोगों के कारोबार, उसको इतनी एक्सपोजर फील्ड में आके हो गई होगी, रजिस्ट्रेशन, बैंक, ये वो सब चीजें, उसको कॉन्फिडेंस ये रहता है, नाउ आई कैन डू माई ओन बिजनेस, और मे बी आई विल स्टार्ट माई कंसल्टेंसी हेल्पिंग पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस वहां पे। क्योंकि मैं मिली काफी लोगों से, काफी बच्चों से जो कि सीनियर कंसल्टेंट के नाम से, पता चला उन्होंने 4 साल पहले ये कोर्स किया था, आज उनकी जबरदस्त कंसल्टेंसी चल रही है। They are helping new entrants in entrepreneurship to start their business, establish their business. तो ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारा UGC को कि इस तरह से पेपर को पढ़ाने। जब तक कि ये चीज नहीं आएगी तब तक के प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन नहीं होगा और चीजें उतना रट के नहीं समझ में मतलब समझ में आती है, मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन जब फील्ड में आते हैं ना, तो बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट, दैट इज द केस. So I think this is all about what I would talk about entrepreneurship and how important it is. And therefore, with this, I will conclude that though India has a very large, demographically diverse population, but however, investment in science, technology, and innovations, they are not yet translating into desired growth reality. So realizing that innovation-led entrepreneurship development holds promise for growth, the government, though they have already taken lots of steps and measures, but I think its step will depend upon their जो भी policy बनी है, एक तो सबसे पहले genuinely और earnestly उसका implementation हो, execution हो. But I think I will conclude with the words that the new direction reflects strong growth, aspiration, and it resonates with the zeal and zest of the youth who must be prepared for adventurous path of innovation-based entrepreneurship.
Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much to you, ma'am, for your this continuous and very nice deliberation regarding entrepreneurship. Even I know, ma'am, you are highly engaged. और प्रोस्ट होना तो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैम. But that is a part of our duty. और उसके बाद भी आपने वक्त दिया हम लोगों को. नहीं, आप लोगों का. It's always a pleasure to perform on your platform और जो participants हैं उनको जो फायदा मिल सके और या आगे जो भी इन लोग जैसे भी करना चाहें इसको entrepreneurship, I can always help them. Thank you, ma'am. Participants, if you have any query, you can ask. Ma'am is there. Ma'am, it was a great presentation and lecture, ma'am. Thank you very much for entrepreneurship development. Ma'am, my question is that we have a lot of technology business incubators, also the venture centers. Whether they will be giving any kind of entrepreneurship development opportunities or programs for the students, especially when they have finished their degree and they want to do something with the entrepreneurship. So how they are helping us in Obviously, they are helping. For example, the innovation and this incubation center at Aligarh Muslim University, we are helping the students to develop themselves. We are giving them practical insights into the field और उस field में उनको जो है एक्सपोजर दिया जाता है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस डेवलप करी जाती हैं. जो बच्चा अपने आप वहाँ पे वो जाके रजिस्टर कराता है. तो अगर आपके भी बच्चों को और आपके शहर में कहीं पे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इस तरह से, दे कैन गो एंड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड. लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर DIC, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है in training and helping the participants. मतलब it may be a student or non-student, है ना, कोई भी, लेकिन जो स्किल उसके पास है या वो बिजनेस करना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ में जो DIC है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, वो मेरे प्रोग्राम में आते हैं, उनका एक सेशन होता है. तो कोई भी इंसान फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहा है या फिर वो ब्रेड बनाने की फैक्ट्री खोलना चाह रहा है या मतलब मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है, तो DIC सेंटर में इनके छोटे छोटे इंक्यूबेटर्स होते हैं, वेयर दे कॉल यू फॉर एडमिशन. वो एडमिशन देते हैं और उसके बाद वो प्रोग्राम चलता है. उसमें वो ऑब्वियसली थ्रू आउट द ईयर जब भी चलता है 3 बार 4 बार वो एडवर्टाइज करते हैं. तो जो भी पार्टिसिपेट लोग करना चाहते हैं वो जाते हैं. आपको पता है there is a very big list of these kinds of incubation programs उनके क्या होते हैं. तो ये DIC तो हर जगह मौजूद होता है, वहां पे पता लगाइए. बल्कि ये कैनरा बैंक का CSR का जो पैसा होता है वो इन्हीं तरह की ट्रेनिंग और इन तरह की हेल्प करने में लगा होता है. अभी यहाँ पे अलीगढ़ में एक RCETI, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में मैं कैनरा बैंक को भी बुलाती हूँ एक सेशन के लिए, तो दे टोल्ड मी कि RCETI एक इन्हीं ने खोला हुआ है जो कि इनका एक तरह से इंक्यूबेशन है. उसमें वहां पे पशुपालन सिखाते हैं पूरा और फिर लोन भी देते हैं उसके लिए, ठीक है, क्योंकि कैनरा बैंक खुद करा रहा है. इसी तरह से इनके क्या ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कराते हैं, सिलाई कढ़ाई का भी कराते हैं, उसके बाद लोन भी देते हैं अगर बुटीक खोलना है या दुकान खोलना है, प्लस मशीनें भी देते हैं. ये गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स होती हैं जो अभी लोग अवेयर ही नहीं है. वो मैं बता रही हूँ ना, 70% लोगों को पता नहीं रहता है. ये जब आप इन लोगों के सेशंस कराने चाहिए कॉलेजेस में, इन लोगों को बुला के इनके लेक्चर्स कराने चाहिए कि आप अपने जो कंटेंट है आपकी जो स्कीम्स है ये वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करिए. यू नेवर नो, कई बार तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जिनके पेरेंट्स कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो बच्चा जो है घर जाके बताता है कि वहां पे जाइए और इसका सॉल्यूशन ये है. तो ये कहीं भी अगर आपके पास इस तरह के बच्चे हैं या वो करना चाह रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए उनको मतलब एडवाइस करिए. वो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा. DIC का इतना इंपॉर्टेंट रोल मुझे भी नहीं पता था, बीइंग अ टीचर, बिकॉज आई एम डूइंग जॉब. लेकिन इस प्रोग्राम के बाद मुझे एक्सपोजर हुआ, फिर मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को फायदा हुआ इसमें. एक फॉर एग्जाम्पल एक वो थी आर्ट टीचर है, स्कूल में थी, मतलब अब तो छोड़ दी उसने अपनी कोचिंग सेंटर खोल लिया है. तो वो DIC में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो वो जो है वहां पे जाके
जब एग्जीबिशंस कहीं बड़ी होती हैं तो उसको वहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए DIC जो है वहाँ पे इन्फॉर्म करता है, और फिर इनको एग्जीबिशन लगाना होता है। उस स्टॉल के जो भी किराया होता है वो DIC रेंट पे भी, मतलब सॉरी, कर्जा भी दे देता है उतने पैसों का, कि आप पहले एग्जीबिशन लगाइए, फिर पैसा कमा लीजिएगा, फिर वापस आके हमें वापस कर दीजिएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन होता है वो, क्योंकि कई जगह, अच्छी जगह जब आप एग्जीबिशन को देखिए ना तो 50-50 हजार रुपए स्टॉल के लेते हैं वो, और ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से DIC हेल्प करता है। तो आप क्या, अगर ऐसा कोई है जो करना चाह रहा है तो प्लीज यू मे ऑलवेज रेकमेंड देम कि गो टू द वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लें, और वहाँ पे सब सिखाया जाएगा। फंडिंग के लिए भी हेल्प। Yes, thank you. And I have another question to ask. Now, over a period of time, we have seen a trend in a lot of startups. And among every students are want to become an entrepreneur, and it is happening. But they may not be sustained for 1 year, 2 year, or many years, and they will close down. And this is what is the trend is happening. Why it is देखिए, happening like that? हाँ, मैं आपको एक, मोहन जी, मैं आपको एक चीज बताऊं। दिस इज हैपनिंग बिकॉज वी ऑलवेज फील कि एंटरप्रेन्योरशिप इज, देखिए एक चीज मैं पूछूं आपसे, माय क्वेश्चन इज टू यू इज, सपोज अ पर्सन बिकम्स अ डॉक्टर, he qualifies the exam and he becomes a doctor, ठीक है, and now he is not getting a job, so he starts a clinic, ठीक। तो किस चीज पे उसके क्लिनिक का सक्सेसफुल रनिंग शुरू होगा, वो डिपेंड करेगा। Patience. Pardon? The patient is the main thing, and But patient, why will patient come? the knowledge, skill, whatever he has. Exactly, the good practice he is providing, that is, उसका जो प्रोडक्ट है वो है उसका जो इलाज कर रहा है, ठीक है। He is taking care of the patient, is giving them medicine, and that product of his जितना अच्छा होगा उतना ही उस डॉक्टर की दुकान चलेगी, ठीक है। So similar, that is a business model. So similar is with the entrepreneurs also. ज्यादातर माइंडसेट स्टार्टअप में क्या होता है, इंडिया में बहुत स्पीड में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और काफी फेल भी हो रहे हैं। द रीजन इज व्हेन यू थिंक ये सिर्फ 100 मीटर की रेस है और इसको जीत लेंगे, एक बार स्टार्टअप सेट हो गया अपने आप चलेगा। नो, इट इज अ मैराथन। It is a marathon. You have to consistently run and run and run. आपको क्या लगता है टाटा बिरला या रिलायंस ग्रुप है वो क्या एक बार एस्टेब्लिश करने के बाद आराम से बैठ गए? नहीं, they have been consistently working very hard, and there are so many principles of that is your maybe integrity, your honesty with your customers, your consistency. तो ये सारी चीजें अगर जब तक वही लोग कामयाब होते हैं, तो पहली बात तो इसको ये ना समझा जाए कि ये शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया और दुकान खोल ली या बिजनेस खोल लिया चल जाएगा अपने आप। नो, इट विल नेवर। वेदर आप देखिए ना, टीचर भी हम बनते तो टीचर भी ठीक है, नौकरी मिल गई, तनख्वाह मिलेगी, लेकिन पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा होती है? डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सर्विस यू गिव। So it is the quality of product or service. तो always काउंसलिंग ये करना चाहिए जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। मुझसे काफी बच्चों ने कहा कि नहीं, अगर ये फेल हो गया तो फिर क्या होगा, नौकरी में कम से कम तनख्वाह तो मिलेगी। हमने कहा नहीं बेटा, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो कभी फेल नहीं होगा। इट्स अ मैराथन, यू हैव टू रन स्लोली, यू हैव टू रन कंसिस्टेंटली, एंड गिरेंगे भी, फिर उठना भी पड़ेगा, फिर गिरेंगे, फिर उठना पड़ेगा, एंड इट इज अ लाइफ एंड देयर इज गारंटी तो किसी भी डोमेन में कोई चीज नहीं होती, बट स्टिल टेक इट कि नहीं भाई, हम जो है मेहनत क्वालिटी के साथ देंगे अगर हम सर्विसेज, तो ऑटोमेटिकली वी विल बी सक्सेसफुल। तो कुछ मंत्राज होते हैं ना हर चीज के, जैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप के भी कुछ मंत्राज हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सो I hope I satisfy you, Mohan Kumar Yes, ji. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Rajib Das, Yes, ma'am. Rajiv Das, he has raised his hand, I think. राजीव दास जी कुछ पूछना चाहते हैं आप, या गलती से उठ गया हाथ आपका? शायद गलती से उठ गया। Okay, no issue. सुधीर कुमार जी, सुधीर Ma'am, कुमार जी, yes, sir. Actually, I do not. Ma'am, सुधीर कुमार जी actually, बोल लीजिए, फिर अब्दुल रहीम yes, साहब sir. बोलिएगा। Yes, sir. Sir, actually, the ma'am has said that she's absolutely right, because I have seen a lot of persons, they are starting well, but even after 6 months or 1 year, they are compromising with their qualities. That's why the business is going down. So surely this is a long marathon, not a short 100 meters. Yes. Exactly.
Hmm. Abdul Rahim sir. Good evening, ma'am. Ma'am, I want to share Abdul Rahim an sir. जी. experience, ma'am. After Corona, there were depletion in the market for marine engineering. So what we called the entrepreneurs from marine engineering, and it worked wonders, ma'am. It worked wonders, and people learned few things. Rather, cadets learned few things, like life is not end with a degree, and there is a hope for improvement. There is hope for life, and never nothing works overnight. They are ought to struggle Exactly. everything. Nothing. And There is no magic. Exactly. There's no magic that works overnight. Only and only hard work is a solution to everything, every problem. yes, ma'am. For this, And that's too with consistency. Yes. yes, ma'am. For every fest, now we are calling entrepreneurs, giving many slots for their teachings in the festivals, ma'am. So this is being wonderfully working with our cadets, and there is a ray of hope. People are going into market and outside the market. Excellent. Excellent. Spending 24 lakhs for 4 years degree is worth of going for merchantship. Now people are venturing outside, and it is working wonders, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. मैम एक सवाल तो नहीं है ना, क्वेश्चन है, एक ऑब्जर्वेशन मेरा है, वो मैं जानना चाहूंगा आपसे, ये सोलोप्रेन्योरशिप कुछ होता है? Soul entrepreneurship. Soul entrepreneurship. It is directly related to the females, No. because I was just reading a article on Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Okay. उस पे ये दो एक टर्म आया था इस तरह से, तो मैं सोचा हाँ. Soul entrepreneurship it's not related to gender. It is anybody who does a business single-handedly. It has its own advantages as well as disadvantages. Advantages ये कि जल्दी बन जाता है और आपकी अपनी ऑटोनॉमी होती है, आप अपने हिसाब से बनाते हैं, काम करते हैं, अपने हिसाब से आप ऑफिस खोलेंगे, आप बंद करेंगे, ठीक है, और आपका अपना सेल्फ मोटिवेशन होता है. एंड इसी के लेकिन नुकसान ये होता है कि जब लॉस होता है तो आप ही को सब झेलना होता है, ठीक है ना. तो इसी तरह से सोल एंटरप्रेन्योरशिप के आगे का वर्जन दूसरा होता है, दैट इज पार्टनरशिप, where 2 or more people come together. और इसको और बड़े स्केल पे करना है तो कॉर्पोरेट सेक्टर आता है, कंपनी, ठीक है. तो इस तरह से होता है. बड़ी अच्छी चीजें मुझको मिली मैम इस ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप पे. अच्छा. एक और बड़ी आई विल से ड्रास्टिक चीज मिली, मेरा बहुत यूनिक चीज की, फीमेल्स का इसमें पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है, बहुत. हाँ, और जिसको हमने आर्टिकल का टाइटल था कि चैलेंजिंग बायस एंड स्टीरियोटाइप्स. हाँ, एग्जैक्टली. उसमें ये बड़ा अच्छी. और एक और चीज थी कि मैम हायर जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की फीमेल्स हैं उनका कम झुकाव है इस तरफ, उनका कम है. कि मिडिल और लोअर ज्यादा इसकी तरफ एंटरप्रेन्योरशिप एस्टेब्लिश करने की तरफ है. एग्जैक्टली. एंड दैट इज आई थिंक सम बिकॉज ऑफ सम क्लास स्टिग्मा. यस, मुझे भी ऐसा ही लगा. अपनी औरतों को नहीं, इसलिए मैं रख दिया ये बात आपके सामने, और कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा मेरे लिए. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच कि आपने कीमती वक्त निकाला और ये किया, अपना लेक्चर किया. थैंक यू मैम. अल्लाह हाफिज मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लेक्चर रहा आपका. Thank you, ma'am. My pleasure. Thank you everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, We'll ma'am. leave the meeting, no? Thank you, ma'am. Yes, participant, tomorrow is the last day, so please join on the time, and we will be having valedictory session after 7 o'clock. We will finish the last lecture at 7 o'clock.